Hello everyone, welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing very good and I'm really hoping कि आप सब लोगों ने JIB की अपनी preparation शुरू कर दी है. It is a very good time to start for the November attempt. अभी आपके पास time है and it is also the second quarter of the bank. I think initially बहुत ज़्यादा pressure नहीं होता है. So I think this is the right time when you can actually start preparing for the examination. आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं because बैंक की तरफ से बहुत ज़्यादा pressure नहीं है, right? So, I am your educator for the subject Principles and Practices of Banking under the foundation batch that we have going on YouTube. It is a free classes for all the four subjects of JIB. And in case you're new to the channel, you must subscribe to the channel so that you get all the regular updates. All right. So we have already covered chapter 1 of Principles and Practices of Banking. And now, today, we are going to start with chapter 2, which is again another important chapter और ये थोड़ा सा गाइडलाइन बेसिस वाला चैप्टर है. इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये बहुत ही important concept है, right? So today we are starting this chapter. If you have not seen the previous chapters, you can go to the playlist and see the chapter 1 videos also, right? For those of you who are new to the channel, let me introduce myself. I'm a graduate from Sri Ram College of Commerce and a master's from University of Delhi. And just like you guys, I'm your fellow banker. I have worked with the public sector bank for 5 years. I've qualified JIB and CIB, and now I'm back to my passion for teaching, and I'm here to help you out. So please take my advice. Do the JIB. It's better the sooner. जितनी जल्दी आप करते हैं JIB उतना ही आपको फायदा होता है and it helps you in the longer run. So let's start with today's class, right? So we have a question from yesterday. कल की क्लास में हमने ये एक क्वेश्चन देखा था. ये मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसका आंसर आप लोगों को बताना था, राइट? हमने कल क्या पढ़ा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हमारे पूरे हो गए थे. उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कुछ एंसिलरी सर्विसेज बैंक क्या प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सर्विसेज. तो लीज फाइनेंसिंग का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इसको हम पढ़ते हैं. इसका आंसर आप लोगों को बताना था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीज फाइनेंसिंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है लीज फाइनेंसिंग के बारे में जो कि इनकरेक्ट है? Lessor provides finance but does not enjoy the use of the asset, which is absolutely right. Lessor यहाँ कौन होता है? Bank, right? Lessee can use the asset without incurring the capital cost of ownership. जो हमारा लेसी है वो एसेट को यूज कर सकता है और उसे पूरा जो है कैपिटल कॉस्ट क्या होता है कि उसे खरीदना नहीं पड़ता है एसेट को, वो सिर्फ उसे यूज कर सकता है. लेसी हमारा यहाँ कौन होता है? कस्टमर. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. Lease charges are treated as capital expenses in the lessee's books of accounts. जो हमारा लेसी है कस्टमर, जो लीज चार्जेस होते हैं वो उसे कैपिटल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करता है. ये कल हमने पढ़ा था. एक कैपिटल नहीं रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके एक्सपेंसेस वो दिखाता है तो उसका प्रॉफिट कम रहता है एंड ही हैज टू पे lesser tax. So this is the incorrect statement C. What does statement D says? It says the lessor can write off depreciation on the leased asset against its taxable profits, which is absolutely right. Lessor यहाँ कौन होता है? बैंक. बैंक जो है उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में दिखाता है और उस पे जो डेप्रिसिएशन आता है वो अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हैं, राइट? So I hope this is clear to you all. And here the answer is C. Right? तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा टर्म है जो आपने बहुत बार सुना होगा, काला धन. ठीक है, न्यूज में आता ही रहता है ना? तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग?
लॉन्ड्रिंग का मतलब यहाँ क्या होता है कि कोई भी लेट्स से आपका जो ब्लैक मनी है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो वाइट मनी में। तो जो अगर बिल्कुल बेसिक सिंपल डेफिनेशन मैं दूं तो मनी लॉन्ड्रिंग की यही है, कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, ब्लैक मनी क्या होता है? वाइट मनी तो हमें पता ही है, ठीक है, विच इज अ लेजिटिमेट सोर्स ऑफ मनी, ठीक है, जिसपे आप टैक्स दे रहे हैं, जो लेजिटिमेट सोर्सेस से कमाई गई है। ब्लैक मनी क्या होता है? जो कि इलेजिटिमेट सोर्सेस से कमाई जाती है, राइट? और इसका कोई रिकॉर्ड हमारे सिस्टम में नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जब एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और एज अ बैंक हमारा काम क्या है, और इस एज अ नेशन हमारा काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हमने समझ लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग किन किन स्टेजेस में किया जाता है, क्या तरीका होता है मनी लॉन्ड्रिंग करने का, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जाके अपनी ब्लैक मनी को इजीली व्हाइट में कन्वर्ट कर सकता है। देयर आर मेनी स्टेजेस दैट दे फॉलो टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाइट मनी, बिकॉज हमारे इनकम टैक्स के लोग भी बैठे हुए हैं इसे चेक करने के लिए। तो somebody has to be the masterminds to actually do the money laundering। हम स्टेजेस पढ़ेंगे किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में और कंट्री में क्या-क्या गाइडलाइंस है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, विच इज एएमएल गाइडलाइंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस, राइट। और बैंक्स जो है दे आर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस व्हेन इट कम्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, राइट, because it is all about the inflow and outflow of money through banks only। अब मनी लॉन्ड्रिंग अगर हमें आप पढ़ें, इट इज द इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी generated by criminal activity such as drug trafficking, terrorist funding appear to have come from a legitimate source। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग क्या कहता है कि हमारे पास जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी किसी के पास हैं जो इलेजिटिमेट इलीगल सोर्सेस से आए हैं, जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फाइनेंसिंग, उसको आप एक लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। तो ये इट इज अ क्राइम एंड दिस इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस whereby the origin of funds generated from criminal activities like drug trafficking, गन स्मगलिंग, करप्शन, जैसे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे केसेस हैं हमारे 2G स्कैम, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस था। इस कंसील्ड, जो ओरिजिन ऑफ फंड्स है उसे छुपाया जाता है, एंड दीज फंड्स आर इन्फ्यूज्ड इन द फाइनेंशियल सिस्टम appearing as if these originated from legitimate sources, ठीक है। ये जो इलेजिटिमेट तरीके से पैसा कमाया गया है इसको हम फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि ये एक सही तरीके से कमाया हुआ पैसा है। फाइनेंशियल क्राइम्स एंड टेररिस्ट फंडिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, सत्यम का केस हो गया, विजय माल्या का केस हो गया, या टेररिस्ट फंडिंग हो गया, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम्स में आते हैं। Several prominent money laundering cases have emerged in India। इंडिया में बहुत बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केसेस आए हैं। मनी है तो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस भी होंगे, often involving high profile individuals and intricate financial schemes। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि आप बेसिकली एक वेब ऑफ ट्रांजैक्शंस बनाते हैं जिसको डिफिकल्ट टू ट्रेस होता है करना, कि आपने एक ही पैसे को इतनी बार घुमा दिया है कि उसका सोर्स जानना मुश्किल हो जाता है, राइट। सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल एग्जांपल्स आर, मनी लॉन्ड्रिंग के क्या एग्जांपल्स हैं इंडिया में? विजय माल्या, नीरव मोदी एंड सरदा ग्रुप। तो इन सब में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस इन पे प्रेस किए गए हैं। जैसे अगर हम विजय माल्या की बात करें, किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक, उन्हें क्या एक्यूज किया गया था? उन्होंने मल्टीपल बैंक्स में एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ट्रांजैक्शंस बनाया था। लोन डिफॉल्ट्स तो हमें पता ही है उन्होंने किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, जो लोन डिफॉल्ट के साथ साथ उनके पास जो पैसा था, ठीक है, उसको उन्होंने बहुत सारी डमी कंपनीज क्रिएट करके उनमें ट्रांसफर किया था
जिसमें जैसे यहाँ हमने लिखा है इनएक्टिव कंपनीज और उनके डमी डायरेक्टर्स क्रिएट किए थे। उन कंपनीज में एक्चुअली कोई काम नहीं हो रहा था, दे वर जस्ट ऑन पेपर्स। तो जो लोन से पैसा मिला है वो यहाँ ट्रांसफर किया for his personal use. So this he was also pressed against the charges of money laundering. तो ये एक कॉम्प्लेक्स तरह की ट्रांजैक्शन होती है, हमें बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो है एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ट्रांजैक्शंस क्रिएट किया जाता है, राइट। अब स्टेजेस क्या होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, क्या क्या स्टेजेस के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली हैज थ्री स्टेजेस: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं? जब आपके पास जो काला धन है उसको आप सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी इनटू द सिस्टम। ठीक है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी में जाके वो पैसा आप किसी अकाउंट में जमा कर रहे हो। ठीक है, मान लो आपने, लेट्स से एक कंपनी है, उसने अपने 10 एम्प्लॉयज को 1-1 लाख रुपए दे दिए, बोला कि अपने अकाउंट से जाके जमा कर दो, क्योंकि कंपनी अगर एक साथ बहुत सारा पैसा जमा करेगी तो उसे दिखाना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आया है। तो इस तरह से वो जो डर्टी मनी है उन्होंने सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दी। अब लेयरिंग क्या होता है? उस मनी को आप इतनी बार घुमाओगे कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रेस कि वो मनी आ कहाँ से रही है। देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है कि मनी घुमा रहे हैं, ट्रांसफर ऑन द बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी एक्स। कंपनी एक एक्स है, उसने अपने पैसे से लोन दे दिया अपनी कंपनी वाई को, फिर एक फॉल्स इनवॉइस से कंपनी एक्स के पास वो पैसा वापस आ गया है। तो इस तरीके से एक वेब ऑफ ट्रांजैक्शंस बना देते हैं, जिससे इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रेस द मनी। उनके खुद के ही एम्प्लॉयज के साथ, या फिर उनकी कुछ डमी कंपनीज होती हैं जो बना लेते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल, देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस स्टेज में जब लेयरिंग कर रहे हैं, आप बेसिकली लेयर बना रहे हैं ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। प्लेसमेंट मतलब आपने उस मनी को इंट्रोड्यूस किया सिस्टम में। लेयरिंग, यू आर लेयरिंग इट इन डिफरेंट वेज सो दैट नो बडी कैन फाइंड इट आउट। इंटीग्रेशन इज द लास्ट स्टेप, जिसमें क्या होता है, आप उससे कुछ लेजिटिमेट चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि आपने कोई लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट कर ली, एसेट खरीद ली। ठीक है, तो वो फाइनली आपने वो मनी यूज कर लिया, तो इट हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। So these are the stages of money laundering. इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, so it is important for you to have clarity on the stages. अगर हम अब theoretically पढ़ें, प्लेसमेंट क्या होता है? In this stage, the funds from criminal activities are introduced into the financial system. Typically, this is done through deposits in multiple bank accounts, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। Layering, next, those funds are passed through numerous financial transactions in these accounts, creating several layers of funds transfers. आप बहुत सारी उन फंड से ट्रांजैक्शन करते हैं, कभी एक्स से वाई को दिया, वाई से जी को दिया। ठीक है, इस तरीके से वो लेयर कर देते हो आप सिस्टम में कि आप सोर्स ऑफ फंड्स फिगर आउट नहीं कर सकते हो। Integration is the last step. Next step is collecting the funds lying in multiple accounts in one or few accounts that are then deployed for investing in some legal business activity or for acquiring some asset in legitimate form. पहले मैंने एक्स वाई जी और बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा डाल दिया, फिर फाइनली मैंने वो पैसा किसी दो जो मेरे खास लोग हैं उनके अकाउंट में डाला, और उससे पैसे से मैंने फाइनली कोई लेजिटिमेट या तो बिजनेस शुरू कर दिया या फिर कोई एसेट खरीद ली लेजिटिमेट। ठीक है, कोई लीगल एसेट मैंने खरीद ली। तो दिस इज द प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब हमारा ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क क्या है? ठीक है, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। तो हमने फ्रेमवर्क बनाया है ग्लोबली भी, और इंडिया लेवल पे क्या फ्रेमवर्क है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। ग्लोबल फ्रेमवर्क में क्या है, हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये देखती है कि ग्लोबल लेवल पे हम कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं, और ये डिफरेंट गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स देती है that the member countries have to follow. Financial Action Task Force is an intergovernmental organization that sets international standards and promotes policies to combat money laundering and terrorist financing.
इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989। G7 ने 1989 में इसको एस्टैब्लिश किया था। ये क्या करती है, पॉलिसीज देती है और recommendations देती है डिफरेंट कंट्रीज को कि आप कैसे इलीगल फाइनेंशियल फ्लोज को रोकें। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड्स बनाती है वो सारे मेंबर कंट्रीज मिलके डिसाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम बात करते हैं हमारे कंट्री में, इंडिया में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क क्या है। तो आप लोगों ने सुना होगा, ये फेमस एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। दैट इज द प्राइमरी एक्ट दैट वी हैव, जिसके हिसाब से हम इंडिया में अपना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क देखते हैं, राइट। तो हमारा ये एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो एफएटीएफ की रिकमेंडेशंस पे इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वाज इनेक्टेड, जिसके अंडर सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर्स हैं, बैंक्स हो गए या कोई और बड़े नॉन फाइनेंस बिजनेसेस हैं, जहां पे एक्ट के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से दे कम अंडर द परव्यू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द एक्ट। और जिन एंटिटीज को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो या नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में हो, उनको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने बैंक्स के जोनल ऑफिसेज वगैरह में काम किया है या रीजनल ऑफिस में, तो हम हर क्वार्टरली और एनुअली कुछ रिपोर्ट्स भेजते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज के नाम से। तो मनी लॉन्ड्रिंग के रिपोर्ट्स भी भेजी जाती हैं उस तरीके से। ठीक है, जनरली जो हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट होता है वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में होता है, बट जोनल ऑफिसेज को भी अपनी कुछ ना कुछ जो है रेगुलेशंस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं, क्वार्टरली एनुअल बेसिस पे भेजना होता है। अब अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस होता है तो उसके लीगल रेपरकशंस क्या हैं, किस तरह की पेनल्टीज हैं, राइट। So the offense of money laundering has been defined in Section 3 of PMLA, Prevention of Money Laundering Act के Section 3 में define किया गया है। Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is part or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, including its concealment, possession, acquisition, or use and projecting or claiming, should be guilty of money laundering crime। तो कोई भी knowingly unknowingly पार्ट है मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम का, एक्चुअली इन्वॉल्व है पैसे छुपाने में, रखने में, या उसे किसी चीज में लगाने में, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम के गिल्टी माने जाएंगे। पनिशमेंट उसकी क्या होती है, 3 years to 7 years की पनिशमेंट हो सकती है। और जो मॉनेटरी पेनल्टी है, दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कि आपका ऑफेंस कितना सीरियस है, उसके बेसिस पे आपकी पेनल्टी डिसाइड होगी, राइट। अगर नारकोटिक्स से रिलेटेड केस है, कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड केस है, तो आपका जो जेल है वो आपको 10 साल तक की भी हो सकती है। सो इन शॉर्ट, इट इज अ वेरी सीरियस क्राइम as seen by our country or at the global level, right। अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, हमारे क्या क्या इंस्टीट्यूशंस बने हुए एट द नेशनल लेवल जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग देखते हैं। तो हमारे पास एक है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। जैसे हमारे पास टीवी में सीआईडी था, वैसे ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। ये देखती है, सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करती है डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, जो कि पीएमएलए की गाइडलाइन के अंडर आ सकते हैं। So these are like a check in the system. They have to see, it is an intelligence unit, all the transactions related to different businesses जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ईडी, जैसे हमारे बैंक्स में भी होते हैं, जो अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, ये अथॉरिटी है मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड देन वी हैव द एडजुडिकेशन पार्ट।
हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स हैं जिनका काम क्या होता है, ये देखना कि मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम में किसको कितना आपको पेनल्टी देना है, imprisonment देना है. So this is our institutional framework for anti-money laundering, for preventing money laundering act. अब हम बात करते हैं, ये हमने अभी तक जो डिस्कस किया है दैट वी हैव डिस्कस्ड कि नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है. जैसे हमने ग्लोबल लेवल पे देखा एफएटीएफ बना हुआ है. नेशनल लेवल पे अगर हम देख रहे हैं तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है हमारे पास, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एंड देन वी हैव द स्पेशल कोर्ट्स. अब हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के विद इन भी कुछ सेटअप रखना पड़ता है. ठीक है, तो इसमें हम बता रहे हैं कि पीएमआर जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंडर हर ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है स्पेशली टू सी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंड वन प्रिंसिपल ऑफिसर. तो आज हम सिर्फ डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड प्रिंसिपल ऑफिसर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. राइट, तो ये डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन हो सकता है? ठीक है, हमें ये जानना है कि हम डेजिग्नेटेड डायरेक्टर किसको बना सकते हैं. हु कैन बी अ डेजिग्नेटेड डायरेक्टर? The managing director or a whole-time director duly authorized by the board of directors if the RE is a company. अगर RE एक कंपनी है तो उस केस में डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन बन सकता है? या तो MD या कोई होल टाइम डायरेक्टर. अगर RE यहाँ पे क्या है? रेगुलेटेड एंटिटी, जिनको रेगुलेटेड एंटिटी, entities who are supposed to report for money laundering activities. अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जो मैनेजिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, वो हो सकते हैं आपके डेजिग्नेटेड डायरेक्टर. अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपके प्रोप्राइटर. अगर जो आपकी एंटिटी है एक ट्रस्ट है तो मैनेजिंग ट्रस्टी जो है वो आपके डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होंगे. A person or individual, as the case may be, who controls and manages the affairs of the regulated entity if the regulated entity is an unincorporated association or body of individuals. अगर कोई एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो उस केस में कौन होंगे आपके डेजिग्नेटेड डायरेक्टर? कोई भी पर्सन और इंडिविजुअल, या कोई भी पर्सन और इंडिविजुअल जो उस रेगुलेटेड एंटिटी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल बैंक्स के केस में जो भी सीनियर मैनेजमेंट या उनसे रिलेटेड कोई पोजीशन होल्ड करते हैं उनको हम डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बना सकते हैं. राइट, तो बैंक के केस में डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन हो जाएगा? या तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, बिकॉज वी हैड स्टडीड in chapter 1 that bank is a banking company registered under the Companies Act 2013. Right, next we have is role. क्या होता है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का? उसे करना क्या क्या होता है, क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. राइट, तो उनको पहले तो ये देखना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक सही तरीके का सेटअप है कि नहीं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, कि आपके पास एक राइट टीम है या नहीं. ठीक है, राइट नंबर ऑफ पीपल है या नहीं, आपकी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं कि नहीं. तो दैट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा क्या है? केवाईसी पॉलिसी अपडेट होती रहनी चाहिए. केवाईसी इज अ प्राइमरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि उसमें आप जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं. ठीक है, जेन्युइननेस देखते हैं. तो केवाईसी से ही बहुत लेवल्स पे आप मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट कर सकते हो. ठीक है, केवाईसी ठीक तरीके से अगर बैंक्स लें प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ और अगर राइट पॉलिसी है तो अ लॉट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज कैन बी एलिमिनेटेड. ठीक है, उन्हें ये देखना है कि हर लेवल पे जो स्टाफ है उनका स्किल्ड हो, और अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ
कुछ नई एक्टिविटीज उस तरह की मार्केट में हो रही हैं, सो दे हैव टू टेक सूटेबल मेजर्स ताकि जो उनका बैंक या एंटिटी है वो अफेक्ट ना हो। जो ये है हमारा रोल ऑफ अ डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। ठीक है, so now we are done with what do we mean by money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ग्लोबली क्या आपकी गाइडलाइंस हैं, इंडिया में क्या गाइडलाइंस हैं, इंडियन लेवल पे नेशनल लेवल पे क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हमारे बैंक के लेवल पे हमें क्या डेजिग्नेशंस रखनी होती हैं, हमने ये आज पढ़ा है। एंड अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे लाइक ऑलवेज। ठीक है, so we have the first question which says, which of the following stages in the money laundering process involves hiding the source of illegal funds by passing them through numerous financial transactions? ये हमने आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ा है, तो आई होप आप सबको याद होगा। कौन से स्टेज होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में जहां पर हम सोर्स ऑफ इलीगल फंड्स को हाइड करते हैं? कैसे? न्यूमरस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करके, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करके हम कोशिश करते हैं कि हम जो है उसका सोर्स हाइड कर दें। तो वो क्या है? प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन या डिस्बर्समेंट। तो हमने पढ़ा था वो क्या होगा? लेयरिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स पासिंग फंड्स थ्रू न्यूमरस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्रिएटिंग सेवरल लेयर्स ऑफ फंड ट्रांसफर्स। प्लेसमेंट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लेयरिंग में हम न्यूमरस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू कंसील करते हैं, और इंटीग्रेशन में फाइनली कुछ लेजिटिमेट एक्टिविटी में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसीज हैं उनके बारे में इनकरेक्ट है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हमने पढ़ा है, it is responsible for receiving information about financial transactions from businesses including banks. Second is Enforcement Directorate, ED, investigates and prosecutes money laundering crimes with powers to track and attach related assets. Third has special courts are set up to prosecute individuals accused of tax evasion unrelated to money laundering activities. Fourth hai regulators of various businesses covered under the PMLA issue guidelines to ensure compliance with PMLA and PMLA rules। ठीक है, ये हम आप लोगों को इसका आंसर मुझे कल बताना है। So, all right, that brings us to the end of today's class. I hope you have been able to understand the entire concept. अगर आपके कुछ doubts हैं, questions हैं, queries हैं, तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं। And if you want to start the JIB preparation on a more comprehensive level, more descriptive level, we also have a super plan subscription that you can take, and वहां पे आपको और मॉक टेस्ट मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मिलता है, मॉड्यूल टेस्ट मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। So you get everything that you need to know about JIB. For that, you can download our app and you'll be able to find all the types of batches there. And आज की क्लास की पीडीएफ के लिए you can follow us on the Telegram channel. You'll find the PDF there. And if you're new to the channel, you should subscribe to the channel so that you get all the regular updates. All right. Thank you so much. Have a good day.